Hello students, good morning and welcome all of you. So last time we were discussing how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids. इसमें हमने देखा था कि जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है एसिड और मेटल कार्बोनेट के साथ तो हमारे पास क्या बनता है उसमें सॉल्ट लाइक हियर इज NaCl इज अ सॉल्ट वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड. उसके बाद हमने पढ़ा था ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर. जब हम उसको लाइम वाटर के थ्रू गुजारेंगे उस गैस को तो देखिए पास करेंगे तो क्या होगा आगे. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर से वापस बन जाएगा. लाइमस्टोन चॉक एंड मार्बल्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ये डिफरेंट फॉर्म्स है कार्बोनेट की. ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट. सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है अब इसमें कि जब भी आपका जो मेटल कार्बोनेट होगा या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 या CO3 तो क्या बनेगा आपके पास. यू विल ऑब्टेन सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दस द रिएक्शन इज समराइज्ड एज दिया है. समराइज करके आपके पास रिएक्शन ये देखें. नेक्स्ट, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर्स. ये आपको पहले ही पता, यू ऑलरेडी हैव लर्न दिस in previous classes. When acid and bases react with each other, what they do, they cancel out the effect of each other and the reaction is called as neutralization reaction. नीचे दिया है देखिए रिएक्शन आपके पास. So we can saw here the reaction. In the above activity be observed that effect of a base is nullified by an acid and vice versa. The reaction taking place is written as. हमने देखा कि क्या होगा, नलीफाई करेंगे दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को एंड वी विल ऑब्टेन्ड सॉल्ट एंड वाटर. सो हियर इज गिवन टू यू बेस प्लस एसिड प्लस गिविंग यू सॉल्ट एंड वाटर. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नेक्स्ट, reactions of metallic oxides with acids. Read the activity. You will notice that color of the solution become blue green and copper oxide dissolves. What will happen here, the solution will become blue green हो जाएगा वो and the copper oxide will dissolve वो घुल जाएगा. The blue green color of the solution is due to formation of copper 2 chloride. The general reaction between the metal oxide and an acid is written as. देखें कैसे होगा रिएक्शन. metal oxide plus acid will give us again salt and water मिलेगा यहाँ पे आपको. Now write and balance the equation for the above reaction. Since metallic oxide react with acid to give salt and water, similar to the reaction of bases with an acid, metallic oxide are said to be basic oxide. They are also called as basic oxides. Reaction of a non-metallic oxide with base. Next is कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा, जो मेटल का नहीं होगा. You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide, that is lime water, in activity. Calcium hydroxide, which is a base, reacts with carbon dioxide to produce a salt and water. क्या बनेगा वहाँ पे, salt और water. Since this is similar to the reaction between a base and an acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. Since देखिए क्या बोला इसने, similar to the reaction between acid और base, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, they are called as a basic oxide. they are acidic in nature होंगे वो. Next is, what do all acids and all bases have in common. In section we have seen that all acids have similar chemical properties. ये हमें पता है similar होंगी. What leads to this similarity in properties.
we saw in activity that all acids generate hydrogen gas on releasing reacting with metals. ये भी देखा हमने कि जितने भी आपके जो metals थे they release hydrogen gas. So hydrogen seems to be common to all acids. It means कि जो hydrogen है it is common in all acids. Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. Activity you have to read this. So after the activity the bulb will start glowing in case of acids as shown in figure. Bulb glow करेगा. But you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की. Glowing of the bulb indicate that there is the flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the acidic solution by ions. So what it indicates, the glowing of bulb, कि वहाँ पे क्या है, there is flow of electric current in the solution. और जो current है it is carried out by ions in the solution. So acid contain H positive ion as cation and anion such as Cl negative in HCl, HNO3 negative in HNO3, SO4 2 negative in H2SO4, CH3CO negative in CH3COOH. ये सभी आपके पास एसिड्स दिए हैं. तो इनमें क्या होता है आपके पास पॉजिटिव कैटाइन या एनाइन होगा, दैट इज नेगेटिव. सिंस द कैटाइन प्रेजेंट इन एसिड इज H positive, this suggests that acid produce hydrogen ion H positive in the solution which are responsible for their acidic properties. So from here we conclude that the acids produce hydrogen ion in the aqueous solution in the water and which is responsible for its acidic property. Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. What will you conclude from the result? Next देखें, what happens to an acid or a base in a water solution. कि water के solution में क्या होगा acid और base को. Do acid produce ion only in aqueous solution? Let us test. Once again you have to read this activity. उसके बाद देखें क्या होगा इस activity के बाद. This experiment suggests that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water. इस activity से ये पता चला there is a formation of hydrogen ion in the HCl in the presence of water. The separation of H positive ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water. ये जो separation है ये water की absence में नहीं होगी. So the reaction is shown to you, HCl plus H2O giving us H3O positive plus Cl negative. Hydrogen ion cannot exist alone, but they exist after combining with the water molecule. Independently exist नहीं करेंगे ये, कब exist करेंगे? When they react with combine with water molecule. Thus hydrogen ion must always be shown as H positive aqueous और हाइड्रोनियम आयन. इस फॉर्म में इसको शो करते हैं. H positive plus H2O will give us H3O positive ion. We have seen that acid give H3O positive और H positive ion in water. तो ऊपर जो एक्टिविटी हमसे क्या पता चला उससे कि जो एसिड है आपका वो ये आयंस देगा इन वाटर. Let us see what happens when base is dissolved in water. Here is given to you a base H2O वाटर की प्रेजेंस में, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस. वन मोर बेस इज गिवन KOH MgOH ट्वाइस. इसमें भी देखें आयन बनेगा पॉजिटिव आयन, साथ ही कौन सा आयन निकलेगा आगे, OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा. तो यहाँ से क्या पता चला जो कॉमन चीज़ है, bases generate hydroxide ions in water. Bases which are soluble in water are called
अल्कलीज। तो अल्कलीज क्या हुआ आपके पास, बेसिक जो मटेरियल होता है ये वो होते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर्स। जो बेसिस हमारे पास हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको और नाम देते हैं अल्कलीज। नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट all acid generate H positive in aqueous and bases generate OH negative. We can view the neutralization reaction as follow. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए कैसे बनेगा हमारे पास, एसिड H है देखिए दिया हुआ यहाँ पे, बेस OH, क्या बनेंगे आपके पास, यू विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। H positive aqueous plus OH negative aqueous will give you H2O, that is water. Let us see what is involved when water is mixed with an acid or base. Once again you have to read the activity. So देखें क्या हुआ इस एक्टिविटी के बाद, the process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic reaction है ये, release of heat होगा यहाँ पे। Care must be taken while mixing concentrated nitric acids and sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. हिलाते रहना चाहिए। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause mixture to splash out and cause harm. अगर हम क्या करेंगे देखिए, if water is added to concentrated acid, तो जो हीट जनरेट होगी है that could splash the mixture, उसको वो फैलाएगी और वो क्या बाहर आ सकता है और आपको हार्म कर सकता है, यू कैन गेट बर्न। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी वहाँ पे, जैसे ऊपर बताया कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइंस ऑन द कैन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। वार्निंग इनके ऊपर लिखी होती है ऑलरेडी। Mixing an acid or base with water result in decrease in the concentration of ions per unit volume. क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ जो आयन है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है। Such a process is called dilution and the acid or base is said to be diluted. तो इस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं। You already have learn about diluted, concentrated and saturated solution in class 9th. So diluted का मतलब क्या है कि we are decreasing the amount of ions or the solute in the solution. Now what is next? How strong are acids or base solution? We know how acid basis indicators can be used to distinguish between an acid or a base. इंडिकेटर का सभी को पता है। We have also learnt in the previous sections about dilution and decrease in the concentration of H positive and OH negative ions in solution. Can be quantitatively find the amount of these ions present in a solution. Can be judge how strong a given acid or base is. क्या हम पता लगा सकते हैं कि भाई वो कितना अमाउंट जो है आयन का उसमें प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा देखिए, आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होंगी हाइड्रोजन आयन की। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। तो इट इज़ कॉल्ड एज पीएच स्केल से हम इसको मेजर करते हैं। देखिए हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को। द पी इन द पीएच स्टैंड फॉर द पोटेंस इन जर्मन, मीनिंग पावर, जिसका मतलब पावर है। सो ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर द पीएच generally from 0 means very acidic to 14 very alkaline, that is basic। तो ये वैल्यू रहेगी इसमें 0 से 14। 0 के पास जो होंगे वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होंगे और जो 14 के पास होंगे वो बेसिक होंगे। द पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज ए
नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये बताएगा कि आपके पास जो दिया वो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है। हायर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा क्या है उसकी पीएच वैल्यू लो होगी। सो द पीएच ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो। एज द पीएच वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम 7 to 14, it represent an increase in OH negative ion concentration in the solution। जैसे जैसे pH वैल्यू इंक्रीज करेगी फ्रॉम 7 to 14, इट रिप्रेजेंट कि देयर इज इंक्रीज इन द OH नेगेटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। दैट इज देयर इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली, अल्कली की स्ट्रेंथ में इंक्रीज आएगा बेस में। जनरली पेपर इम्प्रिंटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। नीचे देखें दिया है आपके पास, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन आयन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जब वो बढ़ेगी तो आपका जो सॉल्यूशन वो एसिडिक होता जाएगा। वेयर एज डिक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स बेसिक सॉल्यूशन क्या है वो ज़्यादा होगा, ये एसिडिक जो नेचर है वो बढ़ता जाएगा। देखिए 7 से जब नीचे को वैल्यू आएगी इट विल बी मोर एसिडिक सॉल्यूशन, जब 7 से ऊपर जाएगी वैल्यू इट विल बी मोर बेसिक सॉल्यूशन। एंड 7 इंडिकेट न्यूट्रल सॉल्यूशन, नाइदर एसिड नॉर बेस। सो दिस इज शोन टू यू हेयर। जैसे यहाँ पे दिया है देखें, गैस्ट्रिक जूस हो गया आपका, लेमन जूस, इनकी पीएच कितनी है, प्योर वाटर और ब्लड की भी दी है। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH नेगेटिव आयन। स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कितना जो है हाइड्रोजन आयन है और OH नेगेटिव आयन है। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन से 1 मोलर, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, अलग अलग अमाउंट प्रोड्यूस करेंगे ये। सो एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयन्स आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो याद रखें यहाँ से, एसिड दैट गिव राइज टू, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड एसिड दैट गिव लेस H पॉजिटिव आयन आर सेड टू बी वीक एसिड होंगे वो। सो कैन यू नाउ से वट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होंगे आपके, जिनमें जो है OH आयन का अमाउंट ज़्यादा होगा, और वीक बेस होंगे जिसमें OH नेगेटिव आयन का अमाउंट कम होगा। सो दिस इज all about for the day. So read it properly and try to understand everything. Thank you.